Hello everyone. So today we are going to learn about vertical circular motion. So in case of vertical circular motion, the object is tied to the string and it is moving in vertical plane. So v1 is the velocity at top position A, v2 is the velocity at bottom position B, and v3 is the velocity at mid position C. O is the center and r is the radius. In diagram you can see that when object is at position A, the tension acting on the string is downward direction, it is toward the center, and weight is always downward direction. So therefore T1 and mg both are in a downward direction. So when object comes to the point B, here the tension acting on that object is towards the center, so it is in upward direction, and that weight that is in downward direction. So in this way this object is performing vertical circular motion. So now we have to find the values for the v1, v2 and v3. सो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसमें अभी हमें v1, v2 और v3 के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन. Velocity at top position. When object is performing vertical circular motion, when it is at point A, here the velocity is denoted by v1, and here you can see that t1 and mg both are in downward direction. So when object is performing circular motion, here is the necessary centripetal force is provided by the t1 and mg. So I can write here m v1 square by r, this is the formula for the centripetal force, is equal to T1 plus mg. The tension at top position is 0. So put T1 is equal to 0. So 0 plus mg. So mv1 square by r is equal to mg. So here m will get cancelled and v1 square is equal to rg. Therefore, v1 is equal to root rg. So this is the velocity at top position in case of vertical circular motion. Okay. So this is the velocity at top position in case of vertical circular motion. v1 is equal to root rg. Now we are going to find the equation for the velocity at bottom position. जिस तरह से हमने v1 का इक्वेशन फाइंड किया है, अभी हम v2 के लिए यानी बॉटम पोजीशन के लिए वेलोसिटी कितना होगा उसके बारे में अभी देखेंगे. वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन. So according to the law of conservation of energy, the total energy is conserved in vertical circular motion. So I can write here the total energy at top position A is equal to total energy at B. अभी हमें B के लिए फाइंड करना है तो पहले मैं यहाँ पे B लिखूँगा. टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट A. तो टोटल एनर्जी के लिए हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसके लिए हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी B और ये भी B और ये A. काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mg, ये सेकंड है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा v2 और यहाँ पे होगा mg h. ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे h2. हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mg h1. तो
जो बेसिक फॉर्मूले है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के वो हमने यहाँ पे पुट किए हैं। तो इस तरह से अभी हम देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी एट बी है उसके लिए हाफ एम वी टू स्क्वायर फार्मूला है और पोटेंशियल एनर्जी एट बी है उसके लिए एम जी एच टू फार्मूला हमने लिखा है। तो इसके लिए क्या वैल्यूज़ है, तो वी टू तो हमें निकालना है, लेकिन अभी बॉटम पोजीशन के लिए at bottom, so here the height, you can see here the height is here 0, so h2 का वैल्यू हम लिखेंगे 0 लिखेंगे। ओके, so h2 is equal to 0 and at टॉप पोजीशन के लिए जो v1 का वैल्यू है उसे हमें लिखना पड़ेगा, अभी हमने निकाला था रूट आर जी। एंड एच वन के लिए कितना हाइट है, हाइट यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो ओ हो जाएगा आर, और यहाँ से ऊपर और एक आर, सो 2r, सो यू कैन राइट हियर 2r। ओके, सो h1 के लिए हम लिखेंगे 2r। सो ये वैल्यू अभी हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वेयर प्लस एम जी इंटू 0, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी वन का वैल्यू है रूट आर जी उसका स्क्वेयर प्लस एम जी इंटू 2r। तो अभी इसके लिए हम लिख सकते हैं हाफ एम वी टू स्क्वेयर, ये हो जाएगा 0, हाफ एम आर जी प्लस एम जी 2r, यानी हाफ एम वी टू स्क्वेयर कॉमन यहाँ पे निकलेगा एम जी आर हाफ प्लस 2, सो यू कैन राइट एम वी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी आर। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, सो दिस विल बी 5/2, यहाँ पे हाफ है। ओके, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली फॉर वी टू स्क्वेयर we have 5 gr and taking square root, so v2 is equal to root 5 rg. So this is the equation for the velocity at bottom position। जो वेलोसिटी है बॉटम पोजीशन के लिए उसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है v2 is equal to root 5 rg। So velocity at bottom position in case of vertical circular motion is root 5 rg। So now similarly we are going to find the velocity at mid position. Number third, velocity at mid position. So for mid position we can write according to the law of conservation of energy, total energy at point C is equal to total energy at point B। तो हमने टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी ही क्यों यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि हमें अभी V3 का वैल्यू फाइंड करना है, और V3 के लिए जो पोजीशन है मिड पोजीशन वो हमने C से डिनोट किया है। सो यू कैन राइट हियर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, and here is also kinetic energy plus potential energy। formula is half m v3 square plus mgh3 is equal to half m v2 square plus mgh2। यहाँ पे सी सी और यहाँ पे बी बी हम डिनोट करेंगे। तो अभी हम V3 निकालने वाले हैं, तो उसके लिए फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा
कि यहाँ पे H3 का वैल्यू कितना है। एट मिड पोजीशन में आप देख सकते हैं कि जो H3 है, हाइट जो होगा वो कितना होगा, R होगा। हाइट कितना होगा, R होगा। एंड एट बॉटम पोजीशन V2 का वैल्यू कितना होगा, अभी निकाला है हमने √5RG। एंड H2 का वैल्यू वो होगा 0। ओके, तो मिड पोजीशन के लिए जो हाइट होगा वो R होगा, क्योंकि हम एक रेडियस तक वहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। See here in this diagram you can see that the velocity v1, v2, v3, and here if you are finding height, so h1 will be 0, h2 will be r। तो यहाँ हम h1 की जगह यहाँ h2 दिखा रहे हैं, यहाँ पे h3 है और यहाँ पे h1 है, तो ये हो जाएगा 2r। ओके, तो इस तरह से हम हाइट लेते हैं 0, r और 2r। सो फॉर मिड पोजीशन h3 का वैल्यू हमने r पुट किया है। सो हियर आई एम राइटिंग h3 इज इक्वल टू r। So just put these values here. So you can write half mv3 square plus mgr is equal to half m v2 का वैल्यू कितना है, √5RG इसका स्क्वायर प्लस mg इंटू 0। ओके, सो वी कैन राइट हाफ m, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5RG और mg इंटू 0 विल बी 0। सो हाफ m v3 स्क्वायर प्लस mg r। ओके, सो हाफ m v3 स्क्वायर यहाँ पे है 5/2 mgr, ये प्लस mgr इधर आने के बाद माइनस mgr। सो टेक कॉमन हियर mgr and here is 5/2 minus 1, here is half m v3 square। so cross multiplication 2 into 1 that is 2, 5 minus 2 3, 3/2 ये हमने कॉमन मल्टीप्लिकेशन में देखा और उसके बाद यहाँ पे mgr लिखा और यहाँ पे हाफ m v3 square। So these 2 will get cancel, will get cancel, and v3 square is equal to 3gr। So from this we can write v3 is equal to √3gr, or you can write v3 is equal to √3rg। So this is the required equation। At the mid position the velocity is √3rg। Okay, तो इस तरह से हमने आज देखा है कि जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है इस तरह से मूव हो रहा है। ओके, हियर पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली, here is the velocity at top position that is v1, velocity at bottom position that is v2, और velocity at mid position that is v3। इसके जो वैल्यूज है ये हमने फाइंड किए हैं। ओके, सो दिस इज अवर टुडेज क्लास अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फाइंडिंग द वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजिशंस इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी एग्ज़ाम सीज़न है, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है, तो हर शाम को 9:15 राइट 9 बजे ये वीडियोज़ का सीरीज़ में अभी आपके लिए लाया हूँ। इसमें हम बोर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
So I request you to watch these videos and share with your friends.